Hi, good afternoon. Today's live is about whether I follow astrology or not. I am an astrologer, but do I follow? Most of the time, no, I don't follow astrology. I do meditation every day, more than 1 hour, since 2015-16. I should not say since 2015-16 because I was 12 or 13 years old when I started because my father taught me to meditate and it was almost forceful. You have to meditate. Now as an adult, I think every school should introduce meditation, 15 minutes home chanting or any other kind of meditation, not sitting at one place and concentrate. This is not any kind of meditation, sitting at any place and concentrate, because concentration is not something which comes at ease or at easily at its own. It does not come. So there are methods, many methods, more than 100 methods which teaches you how to concentrate. There are several things. Easiest of them, one of them is om chanting. But if there is a client who is Christian or Muslim and you ask them to om chant, they will not do. Another easiest thing is then, which everyone can do, that any religious song, bhajan kirtan of anything, like any religion, play the music and dance. Okay, so that is another easiest way of doing meditation. But other than that, there are more than 100 methods. I told you. Me myself, shayad I have tried 15 methods, but continued to do 4 5 methods for, like, if you don't do any one method for more than 3 months, you will not understand at all whether it is having any impact on you or not. mm, None of the meditation is having any negative impact, but there are some meditation you feel uncomfortable, so it's better not to do. Try for 3 days if you're feeling not comfortable at all. So most of the time, none of us feel comfortable with any meditation. क्योंकि मेडिटेशन क्यों करूँ, उस 15 मिनट टाइम में कुछ और करूँ, और मेडिटेशन करने के बाद जो होता है, मेडिटेशन क्यों ना करूँ, वो क्यों करूँ, ये क्यों करूँ, घर का जो काम है वो करना है, प्रोफेशन का जो काम है वो भी करना है, उसके बाकी एक्स्ट्रा टाइम इधर उधर क्यों घूमूँ, इसको इसको फ़ोन क्यों करूँ, मेडिटेशन करूँ क्यों। वो तो जो करता है उसी को पता है, जो नहीं किया है उसको तो मज़ा पता ही नहीं है। रीसेंट वन वेरी रीसेंट progress, you can say. I have one corn here. Can you see? Here. बर्तन धोने वाला हाथ है भाई, हाथ सुंदर नहीं है। yesterday I had a marriage party, so nail paint लगाया. There's a corn. So I never had any corn in hand. I always had corns under my feet. According to astrological planetary position also, it was quite it was quite possible that always I will have some corns under my feet, or on my feet, something like that. And yes, it was always there. When as I was a child, I had corns. My father used to operate with a blade, with a knife. We will hit it, sterilize it that way, and after that he will cut it into slice. This kind of things he used to do, and he was so confident. Whenever I think about it, I become scared. My mother never supported all these things, but my father did it, and it was very successful. I do remember. I had big corn under my feet, and after that he suggested that only bata shoes, nothing else is allowed. Although whenever we will go to Calcutta, my mother will buy different colorful bellies from footpath, Godiahat footpath. That I do remember. But my father's suggestion was, now when neither I have my mother nor I have my father, now I think
For emotional growth, my mother's support was very important, but my father was actually correct in most of the things. Like, you have to meditate every day, it is mandatory. You have to do yoga every day, it is mandatory. That was by my father, and he was my first guru to teach me meditation. आज देखो मेडिटेशन हीलिंग ये सब करके मैं आई एम अर्निंग, because lord my ninth lord is in 10th ninth lord is in 10th, and whichever it is, the planet is, it is very good. It is very good in 10th position. Okay, ये सब बात छोड़ो. do i follow do I follow astrology and horoscope and all these things? There are so many things, like, when I started studying deeply, and I invented that I should never work under someone. By that time already I have uh, left school, but I was trying my best to rejoin. Trying my best means I was trying to convince myself to rejoin in some school. But the thing is, that time there was no watchman, and my son was really small. He will come home at 2:30, and I will work in a college or higher classes of school, and I will come back home by 5:30. So what that boy will do? 3 hours. So for me as a mother, most of my students know. As a teacher also, I am less teacher and more mother. So I used to make them sit and do homework and classwork, everything in the class only. I never gave any homework in DPS kids. They do remember कि छोटे में तो दिया होगा, but with higher classes I used to make them do everything in the class. क्लास में ही करो जो करना है, घर में होमवर्क नहीं देंगे. थोड़ा सा रिलैक्स होने का भी टाइम रहना चाहिए. सो इट इज़ जॉब ऑफ अ मदर. टीचर explains and give work. Mother sits beside the child so that the child does the work. So I love my role as a mother more than as a टीचर. तो मेरा टीचिंग में 100% टीचिंग नहीं रहता था कभी भी. एंड आई लव माई किड्स whatever. Now, that time I was trying to rejoin. After I left DPS also, I have given one interview in DPS, and you cannot imagine, I was very rude to the director. I told something that I came here to give interview just to ask why, what was wrong that so many of the teachers, so many of the good teachers, like HODs, you have removed at once, and good HODs. I don't think DPS have replaced those HODs. They were excellent, excellent. There were some excellent teachers. तो जो excellent teachers को निकाल दिया किसी किसी को, और किसी किसी को तो मतलब जैसे कोई respect ही नहीं था. तो जो people who work more than he or she should work for that amount of salary, उनको अगर आप थोड़ा सा प्यार नहीं दोगे तो बेइज्जत फील करते हैं. बट इट वॉज माई और आवर बैड लक. मैं जब छोड़ी, मुझे बहुत गुस्से में मैं छोड़ी, क्योंकि 11 जन का करीब ग्रुप था, 9 जन या 11 जन का, जिनको मैं पसंद करती थी. उनमें से सबको निकाल दिया गया, एंड आई वॉज द ओनली वन. एंड 2-3 ऐसे भी थे जिनका हस्बैंड का ट्रांसफ़र हो गया. आई वॉज द ओनली वन. मैं बोली मुझे नहीं करना, क्योंकि जिन लोगों को मैं पसंद बिल्कुल नहीं करती थी उनके साथ मुझे काम नहीं करना है. जिन लोगों को मैं बहुत पसंद करती थी उसमें से मैक्सिमम को निकाल दिया. एक आध बस बाकी थे जिसमें मैं जॉब छोड़ी थी. बट जब मैं अपना हॉरोस्कोप कैलकुलेट करके देखी तो जॉब वॉज माई लास्ट ऑप्शन. 4 टाइप के प्रोफेशन होते हैं, जिसमें वन इज़ जॉब, यू आर वर्किंग अंडर समवन. अनदर इज बिजनेस, यू आर द बॉस. थर्ड वन इज बिजनेस बट यू आर नॉट द बॉस, you are partner of someone. Fourth one is astrology healing. Fourth one is this kind of secret, like this kind of profession of, like, you can be a scientist or research scholar, or not scientist, but you can do research of any subject, and you can be astrologer, healer kind of things. So a research scholar, when he writes a report, then only people will come to know
what work he was doing actually, and what kind of things he has calculated, and from whatever data he has collected. Astrology is also something like that. Very less percentage of people they know actually astrology. Okay, so so hmm, for me the highest grade was this fourth group, and I don't know whether you know or not. Most of you know, I think. I did my PhD from BHU, and my research thesis got corrected in California. तो मतलब झांसा झूठ ये सब नहीं चलेगा, क्योंकि बीचू के हर रिसर्च का एक कॉपी इंडिया में जाता है, एक कॉपी बाहर जाता है। इंडिया में साउथ में गया था शायद, डोंट रिमेम्बर। कैलकाटा स्टैटिस्टिक्स के इंस्टीट्यूशन में गया था इंडिया में, आई फॉरगॉट, एकदम याद नहीं आ रहा है। बट बाहर जो गया था एक पेपर, दैट वाज इन कैलिफोर्निया, एंड मेरा स्पॉटलेस था रिसर्च। दो जगह मतलब पूरा रिसर्च लिखने के बाद पूरा टाइपिंग भी हम, मैं और मेरे हस्बैंड ही बैठ के किए थे, और स्पॉटलेस था। उसमें दो तीन स्पेलिंग शायद गलत था पूरा रिसर्च में। एक पॉइंट, एक रेड करेक्शन का कुछ नहीं था, वही दो तीन स्पेलिंग आलतू फालतू। तो अदरवाइज इतना मेहनत से मैम कराते थे कि कहीं से कोई एक रेड लाइन नहीं आना चाहिए। तो दैट वाज माय फील्ड, एंड later after I calculated I came to this field permanently कि चलो this is only my field। जॉब तो करना ही नहीं था, दैट वाज द लास्ट ऑप्शन। तो मैं जॉब क्यों करी? सिर्फ जॉब नहीं, मुझे किसी का अंडर में कभी नहीं काम करना चाहिए। डू आई फॉलो? व्हाट इज द रिजल्ट? ऑलवेज बैड। I have joined so many groups, Facebook groups and all, where I used to do live astrology। live तो करती थी, and I did past life regression का results and all, which people write, which people write down, those kind of thing in novels, and they sell the novels। इस टाइप का मतलब सोच लो, मेरा एक्सपीरियंस का 20 से 25% ऐसे ही मैं इस ग्रुप में उस ग्रुप में बताई हूँ, मतलब जस्ट लाइक अ स्टूपिड। डेफिनेटली आई बिकम पॉपुलर वेरी वेरी क्विकली, बट आई नो दैट जिसके भी कैलकुलेशन में आता है कि जॉब इज़ नॉट सुटेबल, वर्किंग अंडर समवन इज़ नॉट सुटेबल। यू कैन बी बॉस, यू कैन मेक पीपल वर्क अंडर यू। तुम्हारा अपना ग्रुप हो सकता है, तुम अपने ग्रुप में अपने अंडर में लोगों से काम ले सकते हो, यू विल बी अ गुड बॉस, बट यू कैनॉट वर्क अंडर समवन। उसके बाद एक ऐसा ग्रुप हुआ जो मुझे मॉडरेटर बना दिया। तो माई हस्बैंड टोल्ड कि अच्छा मॉडरेटर बना दिया है तो इट इज़ ओके, यू आर ऑल्सो बॉस। आई एम नो, मॉडरेटर इज़ नॉट बॉस, सो आई एम अंडर एडमिन। तो कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि इट डज नॉट सूट माई एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट। उसके बाद एवरी ग्रुप में सेम ही स्टोरी हुआ है। जो भी जो भी एडमिन है कुछ ना कुछ ऐसा किए हैं कि मतलब एक टॉलरेंस का लिमिट होता है, वो क्रॉस कर जाने के बाद आपको काम करने का मन नहीं करता। और टॉलरेंस का लिमिट कौन सा होता है? उनके लिए भी एक टॉलरेंस का लिमिट होता है, व्हेन यू बिकम वेरी पॉपुलर, एडमिन के लिए भी वो डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो जहाँ जहाँ मैंने एस्ट्रोलॉजी लाइव एंड पास्ट लाइफ रिग्रेशन और ये सब का लाइव किया है, वहाँ पर हुआ है मेरा पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा हो गया। एडमिन के लिए टॉलरेट करना बहुत मुश्किल था, वॉट एवर, बिकॉज मेरे हॉरोस्कोप में अगर ये है कि वर्किंग अंडर, आई शुड नॉट वर्क अंडर एनी बडी, देन आई शुड नॉट। बट ये गलती मैंने बहुत बार किया है, एवरी टाइम रिजल्ट वॉज सेम, फिर भी मैंने फिर किया। मुझे अपना ग्रुप खोलना चाहिए, मैंने खोला है क्या? नो। तो एस्ट्रोलॉजी में फॉलो करती हूँ क्या, मतलब आई एम वेरी स्लो, वेरी स्लो, वेरी स्लो। आई नो friends who started going to beauty parlor when they were class 8। मैं शादी के पहले कभी गई ही नहीं, शादी के बाद में भी नहीं गई, आफ्टर ईशान वॉज बॉर्न तब भी नहीं गई। ईशान वॉज इन क्लास 1, हैदराबाद में किसी ने बोल दिया कि
ईशान योर ग्रैंडमदर हैज़ कम टू टेक यू। बस रोना शुरू हो गया, शी इज़ नॉट माई ग्रैंड मदर, शी इज़ माई मदर। अब स्टाइल फैशन कुछ तो था नहीं, कुछ भी नहीं करते थे। ईशान फोर्स मी कि ब्यूटी वाला जाके बाल कलर कराओ, बाल आधा सफ़ेद हो गया है, पीपल आर थिंकिंग दैट यू आर माई ग्रैंड मदर। ओके चलो कोई नहीं। दैट टाइम आई वॉज 40 years old। 40 years में फर्स्ट टाइम, 40 years की एज में फर्स्ट टाइम ब्यूटी पार्लर गए। सब लोग ब्यूटिशियन से पूरा मेकअप कराते हैं, शादी पार्टी ये सब रहता है, तो मैं कभी नहीं कराई। येस्टरडे वाज द फर्स्ट डे, अभी भी क्रीम्स थोड़ा फूला फूला हुआ है। सो येस्टरडे वाज द फर्स्ट डे जब मैं ब्यूटिशियन को जाके बोली कि शादी है, मुझे ब्यूटी पार्लर में सजना है। आई एम 54-55 years old। अभी जाके फर्स्ट टाइम, खुद के शादी में भी ब्यूटी पार्लर नहीं गए थे, दोस्तों की शादी या अभी तो एनी डे आई कैन गो। मुझे ऐसे क्वेश्चन करने के लिए भी कोई नहीं है, बट आई डोंट गो when your Venus is very good। स्वखेत्री, एग्जाल्टेड, केंद्र कोण, इस टाइप का अगर होगा आपका Venus, डेफिनेटली यू विल नॉट प्रेफर टू स्पेंड मच इन ब्यूटी पार्लर। हाँ, अगर केंद्र कोण में नहीं है, या तो स्वखेत्री एग्जाल्टेड नहीं है, तो पता नहीं, आई it can be anything because debilitated Venus is actress, debilitated Venus is beautician and all। Okay, so beauty related any business is debilitated because exalted Venus is inner beauty। Okay, the person who is very philanthropic, Rebati में Venus get exalted, so person who is very philanthropic is having Venus exalted। जो खुद के दो कपड़े लेकिन दूसरों के लिए कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं पूरा, मतलब खुद के बस खाने पीने लायक रख के या दूसरों के लिए कर रहे हैं, ऐसा मैंने देखा है Venus exalted। इफ दैट Venus इज इन गुड पोजिशन ऑल्सो, वेनस जुपिटर अच्छे पोजीशन में रहेगा, एग्जॉल्टेड स्वखित रहेगा, तो आपके पास रहेगा बहुत, मीन्स एडिक्वेट कहते हैं, जुपिटर इज़ फॉर एडिक्वेसी, यू विल हैव एडिक्वेट, जितना आपको चाहिए होगा उससे ज़्यादा रहेगा थोड़ा। हाँ, चारों तरफ से फ्लो कर रहा है ऐसा नहीं, बट आपको जो भी चीज़ की ज़रूरत है उतना रहेगा आपके पास। ओके, बट एक बार लगा कि येस्टरडे इट वॉज हस्ता, हस्ता नक्षत्र, हस्ता इज डेबिलिटेशन ऑफ वेनस, इसलिए शायद वो अट्रैक्ट किया कि चलो ज़िंदगी में एक बार ब्यूटी पार्लर से पूरा मेकअप होना चाहिए। 54 के हो गए हैं, ठीक है। सो येस, देयर आर थिंग्स विच आई फॉलो कि नहीं करना चाहिए, ये सब मुझे पता है कि मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरा वेनस अच्छा है एंड केंद्र कोण में भी है, केंद्र में भी है। ओके, सो मुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं करना चाहिए। ओके, नाउ प्रोफेशन ही कहोगे तो प्रोफेशन आई डिड नॉट फॉलो। बहुत लोग बोले थे कि जॉब करके कोई फ़ायदा नहीं होगा, बार बार जॉब छोड़ना पड़ेगा। बिजनेस मैं बिल्कुल नहीं करना चाहती थी, अभी भी ना हो। प्रश्नपत्री होररी, many of the astrologers does not have any idea about horary or प्रश्नपत्री। I make horary myself and मैं दूसरों को पैसा लेके horary करती हूँ, तो they do follow that instruction। मैं खुद horary करके उसको फॉलो नहीं करती हूँ। There are so many times when I did horary, जो इंस्ट्रक्शन निकला है वो मैं फॉलो नहीं की और बहुत फंसी हूँ, बहुत, फिर भी नहीं की फॉलो, इससे को बहुत बार हो चुका है। नाउ समटाइम्स आई now like last 5 months 6 months I am blindly, most of the time blindly following horary। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ऑनलाइन कुछ खरीद रहे हैं, अब ऑनलाइन तो कुछ समझ में नहीं आता है, horary करके देखा कि नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन खरीद लिया, सामान पहुंचा ही नहीं। ऐसा बहुत बार हुआ है, सामान पहुंचा बट जैसा था पिक्चर में वैसा बिल्कुल नहीं है। horary ने बोला यस खरीद लो, सामान पहुंचा, जो सामान पिक्चर में बिल्कुल उतना अच्छा नहीं था, जब सामान आगे पहुंचा देखे कि इट इज़ ऑफ वेरी हाई क्वालिटी, गुड क्वालिटी, ओनली द कैमरा वाज नॉट गुड। आई डू nowadays I do follow horary, like there are so many times when I wanted to close my business। मुझे बिजनेस नहीं करना है, कपड़ों का बिजनेस नहीं करना है, कपड़ों का बिजनेस करने के पीछे मेरा एक ही ड्रीम था, आई जस्ट लव टू गिफ्ट। मुझे गिफ्ट करना बहुत अच्छा लगता है, क्लोज वंस को, रिलेटिव्स को, जो मेरे मासी लोग हैं, कजिन्स लोग हैं, कुछ 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 गिफ्ट करते रहो, बहुत अच्छा लगता है। मतलब साल में एक
कपड़ा गिफ्ट कर दिया, ऐसा नहीं, फ्रीक्वेंटली गिफ्ट करने का मन करता है। तो फॉर दैट मुझे लगता है कि चलो आई अर्न फ्रॉम दैट पर्टिकुलर थिंग एंड गिफ्ट दैट पर्टिकुलर थिंग ओनली। फिर भी कभी कभी बहुत गुस्सा आता है क्योंकि यू नीड टाइम फॉर डूइंग एडवर्टीजमेंट एंड ऑल। आप एडवर्टीजमेंट नहीं करोगे तो आपका सामान बिकेगा भी नहीं, तो करने का टाइम नहीं मिलता है। कभी कभी कोई कोई क्लाइंट है वो खुद ही कॉल कर लेते हैं कि मुझे इस टाइप का ये चाहिए, आपके पास है तो दिखा दो, इस टाइप। सो व्हेनेवर आई डिड हो रही कि मुझे बिजनेस क्लोज कर देना चाहिए क्या? सोच लो 2 महीने में कुछ भी सेल नहीं हुआ है, क्लोज कर देना चाहिए क्या? इट नेवर केम कि हाँ बंद कर दो, ऐसा कभी भी नहीं है। एंड हो रही किए उसके बाद फ्रस्ट्रेटेड होके मुझसे नहीं होगा बिजनेस, सडनली विद इन 5 days 5 चीज़ सेल हो गई। तो आई नो दैट होररी इज़ ट्रू, आई नो दैट एस्ट्रोलॉजी इज़ ट्रू। मुझे कौन सा प्रोफेशन में होना चाहिए? बेस्ट प्रोफेशन मेरे लिए है हीलर, ठीक है, हीलर, एस्ट्रोलॉजर, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो वो मैं फॉलो करती हूँ क्या? हाँ, मुझे लगता है मैं हीलर, एज ए हीलर मैं फेम तो मुझे नहीं मिलेगा, फेम के लिए एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है। आपको पॉपुलर होने के लिए आपको पब्लिक रिलेशन में रहना चाहिए। पब्लिक के साथ आप कांटेक्ट ही नहीं रखोगे हीलर्स का, तो ये प्रॉब्लम है पब्लिक के साथ। आई डोंट नो अबाउट एवरीवन, मेरा तो होता है कि पब्लिक के साथ इंटरेक्ट करेंगे, अगर उसमें कुछ नेगेटिव है मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। तबीयत नहीं, मतलब तुरंत तुरंत ख़राब चीज़, बैड ओमेन आना शुरू हो जाता है। किसी से बात कर रहे थे, हार्ड कोर नॉन वेजिटेरियन, और भी कुछ कुछ गलत की है, जो भी है, खुद नॉन वेजिटेरियन हो इट इज़ ओके, बट किसी वेजिटेरियन को ज़बरदस्ती एक पीस खा लो, एक पीस खा लो, उससे कुछ नहीं होता करके, कोई सन्यासी टाइप का समवन वाज देयर, उसको ज़बरदस्ती नॉनवेज खिला खिला के उसको अपने मेडिटेशन हीलिंग के पाथ से निकाल के आई है। उस औरत से मैं बात कर रही थी, घर में इतना सारा बैड ओमेन हुआ, इतना सारा बैड ओमेन हुआ, अल्टीमेटली मुझे कहना पड़ा कि आप मुझसे बात मत करो। व्हेन योर चक्रास आर ओपन, माय गुरु यूज्ड टू से कि जब विंडोज आर ओपन एंड it is आधी तूफान outside, it is storm, your whole house will become dirty from inside, and when doors and windows are closed there is no trouble, बाहर आंधी हो रहा है, घर में सब कुछ सेफ है। So when your third eye is not open, when your chakras are not open, you are safe। आप कुछ भी घटिया काम कर रहे हो, आपको घटिया पनिशमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि आप हो ही लो लेवल के। बट आप जितने हाई लेवल के जाओगे, मतलब जितना चक्रास ओपन होगा आप उतना हाई लेवल के जाओगे, और उसके बाद आप थोड़ा सा भी गलत करोगे तो आपको भयंकर पनिशमेंट मिलेगा। लेकिन जब आप स्पिरिचुअली हाई जाना चाहते हो तो आप फूक फूक के कदम रखते हो, लेकिन आपको चाहिए स्पिरिचुअल हाई पोजीशन चाहिए, उसका भी अलग क्रेज होता है, ठीक है। तो मतलब ये कौन मैं इसलिए दिखाई, पता नहीं मुझे दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पर है। ये कौन मैं इसलिए दिखाई कि मेरे पैर के नीचे था, मेरे प्लानिटरी पोजीशन के मुझे हाँ हिसाब से पैर के नीचे होना चाहिए, हाथ में होने का चांसेस, देयर वाज समवन जिसके हाथ में था, एंड आई वाज डूइंग हीलिंग ऑफ दैट पर्सन, एंड आई वाज क्राइंग आल्सो बिकॉज उसके माँ मुझसे हीलिंग करा रहे थे, उसके हाथ में था, एंड हाथ में रहने की वजह से उसको पेन पकड़ने में दिक्कत हो रही थी, एंड लिखने में दिक्कत होती थी, ही इज़ ए स्टूडेंट, तो बहुत था हाथ में। तो मैं उस लड़के को हील कर रही थी, हील करते हुए पता नहीं क्या हुआ, मैं रो दी। इट वॉज हिज एग्जाम्स, तो उसके माँ उसलिए करा रहे थे, एंड हीलिंग करते हुए मैंने रो दिया कि बेचारा कैसे लिख रहा होगा, हाथ में इतना दर्द है, क्योंकि इतना सारा कौन है हाथ में। उसके बाद धीरे धीरे मैंने नोटिस किया मेरे हाथ में एक हुआ, एक ही हुआ, बहुत सारा नहीं हुआ, एक ही हुआ यहाँ पर, और भी 2 छोटे छोटे हुए थे, वो तो गायब हो गया, नहीं है अभी, बट दिस स्मॉल वन इज देयर। उसके बाद कल हम उस लड़के से मिले, इतना दिन बाद, येस्टरडे आई मेट दैट बॉय, कि तुम्हारा कौन का क्या हुआ? ओहो मैम, आई फॉरगॉट टू टेल यू, पता है मेरा ना 2-3 मंथ्स की 3-4 मंथ्स पहले जब मैं हीलिंग की थी, मेरे हाथ के कॉर्न एक दिन अचानक सुबह देखे हाथ में कॉर्न था ही नहीं। इज़न्ट इट वेरी शॉकिंग? आप मुझे बोलोगे कि मैं एस्ट्रोलॉजी हीलिंग में विश्वास करती हूँ क्या? अगर आप मुझे पूछोगे कि आपने हीलिंग किया था उसके बाद उसके सारे कॉर्न गायब हो गया,
5 6 बड़े बड़े कौन थे, सारे गायब हो गया, आपके हाथ में एक छोटा सा आ गया, और भी था, और भी छोटे छोटे 2 आए थे, वो गायब हो गए। गायब हो गए विदाउट मेडिसिन, मैं तो कोई मेडिसिन खाती ही नहीं हूँ। तो मतलब वाह माता जी। लेकिन आप मुझे पूछोगे, आई विल टेल यू नो, आई डोंट बिलीव दैट आई हैव सम पावर। आई बिलीव इन वन थिंग ओनली। मैं एस्ट्रोलॉजी हीलिंग बहुत फॉलो नहीं करती थी, बट कुछ दिन से फॉलो कर रही हूँ। खुद का प्रेडिक्शन खुद फॉलो इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब भी नहीं करती हूँ फॉलो तो बहुत बुरा होता है। और मेरा बेटा एक जो है वो तो पता नहीं कहाँ से आया है, कहाँ से एक्सचेंज हो गया, मुझे लगता है ईशान इज़ लाइक दैट, ही डज फॉलो। वो हर स्पिरिचुअल रिलीजियस कुछ भी उसको पता चल जाता है तो फॉलो करने का कोशिश करता है मैक्सिमम। सो शायद ये एक एक जो कौन है वो भी शायद गायब हो गया हो जाए। मतलब उस लड़के का 3 4 बड़े बड़े कौन था, उसको हील करते हुए मेरे हाथ में 3 कौन आ गया, उसमें से 2 गायब हो गया। और कल मुझे बहुत दिन बाद जब मिले तो ये पता चला कि दैट उस लड़के के हाथ में जितना कौन कौन था सारा गायब हो गया एक दिन अचानक। जैसे मेरे पैर के नीचे कौन एक दिन अचानक सुबह उठ के देखी थी मैं, पूरा गायब है। आई डू बिलीव इन healing, but I don't believe in power of people. I do believe in power of God. मुझे ये पता है कि ऊपर वाला अगर चाहते हैं ना, तो आज आपका बीमारी है, कल सुबह अचानक गायब हो जाएगा। लेकिन उसमें अगर आप ये सोचने लगे हो कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, देन यू आर एक्सट्रीमली रॉन्ग। इंसान में कुछ भी पावर नहीं होता है। ओके, गुड हैबिट्स रखोगे, अच्छे काम करोगे, बुरे काम नहीं करोगे, तो उसका एक पावर होता है। बट वो भगवान चाहेंगे तो आपसे कुछ कराएंगे। भगवान का चाहना ज़रूरी है, आपका इंसान का कोई पावर नहीं होता। चलो बाय।